بھٹی صاحب، یہ آپ کے خیال میں یہ کاوشیں کتنی ثمرآور ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ فوری طور پر پی ٹی آئی نے ایک جوابی حملہ شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں، اور یہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ تو بے وفا لوگ ہیں تانے۔ اور پھر کل رؤف حسن صاحب کا بھی ہم نے بڑے سخت الفاظ میں ایک وہ انہوں نے جو نکالا، جو بھی تھا پریس ریلیز وغیرہ۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹاپک رکھنے نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو تو کل عمران خان نے کلوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیٹیگریکلی کہا کہ حکومت سے یا ریاست سے اگر کوئی میری طرف سے، میں نے ان کو اختیار دے دیا ہے تو باقی تو مائنس ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مولوی صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان کی ایفرٹ پہ شک نہیں کرتا، ان کی خلوص پہ شک نہیں کرتا، لیکن بھائی جان یہ باتیں ہوتی ہیں تب جب پارٹی پر مشکل وقت ہو اور آپ پارٹی میں رہیں، آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ایفرٹ اگر شاہ محمود قریشی صاحب، جس طرح انہوں نے لاہور جیل سے خط لکھا تھا عمران خان صاحب کو، ان کو جچتا ہے، ان پر تنقید بھی جچتی ہے، ان کا تنقید کا جواب دینا بھی جچتا ہے۔ یہ ایفرٹ اگر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کرتے، کیونکہ یہی دو تھے نا جو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں نہ لڑیں، درمیانی رستہ نکالیں، ساتھ مل کر چلیں، حکومتیں نہ توڑیں، قومی اسمبلی سے نہ نکلیں، مفاہمت کی طرف جائیں، اور جو دونوں کھڑے رہے اور ان دونوں پہ ہم ساروں سمیت معذرت کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ یہ تو پہلی فرصت میں چلے جائیں گے، جب بھی پارٹی پر مشکل وقت آیا تو یہ چلے جائیں گے۔ ایک نے 1 سال پرویز الہی صاحب نے جیل کاٹی، جیل کے باتھ روم میں گرے، ہڈیاں توڑوائیں، پسلیاں توڑوائیں، ہارٹ کا مسئلہ، لنگز کا مسئلہ، اور اس کے بعد آج بھی 17 گولیاں کھا کر سہاروں سے اٹھتے ہیں، اور وہ میرا لیڈر عمران خان ہے اور پارٹی میں۔ دوسری شاہ محمود قریشی صاحب ہے جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور 9 مئی والے دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کراچی میں تھے، وہ بھی 2 سال سے یا 2.5 سال سے یا 1.5 سال سے جیل میں ہیں۔ صحیح۔ اب مجھے بتائیں کہ فواد چودھری صاحب پہ اس وقت 2 فریق ہیں، ایک عمران خان ہے ایک طرف، دوسری طرف ریاست اور حکومت ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ تینوں، میں نے پھر کہا ہے کہ نیت پہ مجھے شک نہیں، لیکن ان تینوں پر کون ٹرسٹ کرے گا؟ حکومت، ریاست یا عمران خان؟ نہیں۔ اچھا پی ٹی آئی ان کو سیریس لے گی؟ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسا رد عمل ہے۔ ان کے پاس ہے کیا سوائے خلوص کے، سوائے ایک آئیڈیا کے؟ اور اس میں نہیں کہتا کہ یہی آئیڈیاز ہوتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے رستے نکلتے ہیں۔ سیاست نام ہی بند دروازے کھولنے کا ہے، لیکن کیا یہ ماحول ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ وقت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ ماحول تو شاید نہیں بات سنیے نا، کچھ ایک ہوتی ہے کہ ایک وائبز ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیں۔ کل کا ٹویٹ عمران خان صاحب کا دیکھ لیں، اس ٹویٹ کی زبان دیکھ لیں، دوسری طرف ریاست اور حکومت کا رد عمل دیکھ لیں، اور وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم، بھارت سے ریڈ ہائی الرٹ، افغانستان سے حالت جنگ، معیشت، 27ویں ترمیم، سیاسی عدم استحکام، رولے۔ اور تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی پی ٹی اے میں سے سیریس لے گا، نہ حکومت میں سے سیریس لے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ فرض کریں ان کو ملاقاتوں کا سلسلہ تو شروع ہی اڈیالہ سے کرنا چاہیے تھا، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے نا۔ وہ تو اگر عمران خان تک ان کی رسائی نہیں ہے تو پھر کون سے مذاکرات بھائی؟ کس کے مذاکرات؟ کہاں سے مذاکرات؟ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کوئی وہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پہلی جدوجہد عمران خان تک رسائی کے لیے نہیں بھائی، یہ پی ٹی آئی کے تھے نا سارے لوگ، چلو اب نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے تھے نا، اور پی ٹی آئی کے لیے بہتری چاہتے ہیں نا، کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہتری ہو، ملک کے لیے بھی بہتری ہو، ساروں کے لیے بھی بہتری ہو۔ تو یہ بہتری کا یا تو ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے، وہاں سے شروع کرتے، یا ایک طرف سے عمران خان ہے وہاں سے شروع کرتے۔ ایک طرف سے گرین سگنل ملتا، دوسری طرف سے گرین سگنل ملتا، کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو ایک وہ لا حاصل سی ایفرٹ ہے۔ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں، جن لوگوں کے مذاکرات ہونے ہیں، جن لوگوں کی مذاکرات سے کوئی چیزیں بہتر ہونی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ مذاکرات کرے یا کوئی مفاہمت کی طرف آئے۔ تو لہٰذا، اور میں پھر وہ اسی بات پہ آتا ہوں، بہت اس پہ مجھے گھنٹہ بلوانے، لیکن پھر اسی پہ آتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہماری طرف سے کریں گے، تو وہاں جا کے ملاقات کریں، تو اس کا مطلب ہے وہ مفاہمت کے لیے یا مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
तैयार है ना, खा वो उनकी दोनों तरफ से। और अगर ये दो नहीं उन्होंने नामजद कर दिया तो फिर तीसरे बंदे की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी तरफ उनके पास है ना, और दूसरी तरफ से अगर कोई बेहतर कोई इस वक्त कर सकता है तो वो हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब कर सकते हैं, जिनके पास एक ओहदा भी है। सही है। हो सकता है बैरिस्टर गौर कर लें, हो सकता है सलमान अकरम राजा कर लें, हो सकता है अलीमा खान से कोई राब्ता हो। तो ये वो मैटर करने वाले लोग हैं। सही है। तो इसका जवाब तो चले मौलवी साहब ही देंगे कि महमूद अचकज़ई साहब से क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि जी आप एक ऐसे वक्त में कोशिशें कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ बढ़ना चाहती है। नवंबर का महीना इंदिया दिया गया था, 3 महीने पहले के नवंबर में एहतजाज होगा। तो एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने के लिए इंगेज कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी एक पैटर्न रहा है, और इसके अलावा इससे कुछ बरामद होने वाला नहीं है। तो आपको अगर ये कोशिशें हैं, इसमें मेरा वही सवाल है कि समर आवर होती हुई नजर आ रही है। और वो जो आपका बुनियादी सवाल था कि महमूद अचकज़ई साहब से क्यों नहीं मिलते, वो कहते हैं हम मिल लेंगे, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, हमारे प्लान में है। अच्छा, एक मौलवी साहब ने एक बात की, और ये बात मैंने भी फील की कि शाह महमूद कुरैशी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, चीमा साहब हैं गवर्नर जो एक्स पंजाब के जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे नहीं समझ आती कि चंद मुलाकातों के अलावा उनसे कभी कोई मुशावरत करने गई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों का मुझे समझ नहीं आती कि ये अडयाला जेल के बाहर धरना दे के बैठे रहते हैं। शायद इमरान खान साहब को रोज़ाना हाज़िरी लगवाते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, या शायद इनको अडयाला करीब पड़ता है, या शायद ये जो एक जमहूरियत के लिए निकले थे कि हम किसी शख्स के ग़ुलाम नहीं होंगे, पार्टी में आज़ादी होगी और पार्टी में हर बंदे का मकाम होगा, तो ये एक बंदे के इर्द गिर्द और घूमना चाहिए। उनके कायद हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। मौक़िफ़ से आप अगर उनको इख्तलाफ करें ना करें, और पीटीआई इमरान खान है, लेकिन ये लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं आपके लिए, एक जो कैंसर सर्वाइवर है, एक जिसका आधा जिस्म बीमार है, बाकी तीनों जो हैं वो हार्ट के हस्पतालों से होके आ चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो आज भी आपके साथ खड़े हैं, कभी उनके विजडम से भी मुस्तफ़ीद हो जाएं, कभी उनके साथ भी बैठ जाएं, कभी उनके पास भी चले जाएं, कभी उनको इज़्ज़त भी दे दें, कभी उनसे मशवरा भी ले लें, कभी उनसे भी पूछ लें कि अब क्या रास्ता है। एक ही चला हुआ है, 4 बंदे इधर हैं, असी इhtजाज करना सड़कों ते आ रहे हैं, थानू वेख लेने, 4 बंदे इधर ने, नहीं ये दरमियान का रास्ता ठीक है। ओ भाई, बाकियों को भी इंगेज किया करें। तो ये एक मैं हमेशा सोचता हूँ कि तहरीक इंसाफ पता नहीं क्यों ऐसा करती है। वे फॉरवर्ड है क्या आपके ख्याल में? तो अगर आप चाहते हैं एहतजाज ना हो, आप चाहते हैं कि दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरी बात अभी मौलवी साहब ने कही कि माशाल्लाह तरक्की की तरफ हम चल पड़े हैं। मैं हैरान हूँ, माशाल्लाह मौलवी साहब को अल्लाह और तरक्की दे, उनका बिजनेस और अच्छा करे, और वो जो सोचते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, तरक्की आए, वैसा ही हो जाए। लेकिन मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है कि जिसने इम्प्रूव किया है? अगर तो आप तरक्की इसको कहते हैं कि एस ने कर्जा दे दिता तो मैं इनू वापस कर देता, उधरू लेके तो मैं इनू कर देता, उधरू IMF ने मैनू हाथ फड़ा देता, इधरू मैं उनू कर देता, तो फिर तो ये 78 सालों से ही हम सुन रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अदलिया में हम कितने नंबर पर हैं? अदलिया बहुत, जहां इंसाफ नहीं होता वहां कुछ नहीं होता। अदलिया में कितने नंबर? 128 में, 32 में, पता नहीं कितने नंबर। आज़ादी इज़हार राय में हम कितने नंबर पर हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में हम कितने नंबर पर हैं? रूल ऑफ लॉ में हम, अभी कल रिपोर्ट आई थी, 130वें नंबर पर है। पासपोर्ट आपका बदतरीन है, चौथा। कर्जे आपके इतने हैं कि कर्जों का सूद देने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। IMF आपको उसने गर्दन से दबाया हुआ, वो कहता है एवी करो, एवी करो, एवी करो, हालांकि वो हमें करना चाहिए था, वो विलन नहीं है, लेकिन IMF आपका मुल्क चला रहा है। सरमायाकारी कहीं नजर कोई नहीं आ रही, सारी बातें हवा में है। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है, आज मैं पढ़ रहा था कि पिछले 3 महीनों की सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि टमाटरों में चिकन डालें या चिकन में टमाटर डालें, तो किधर तरक्की है यार भाई? अभी FBR के चेयरमैन मुझे खुशखबरी सुना रहे थे, पता है आपको 1% जो तबका है ना अमीर, वो 1200 अरब का टैक्स चोर है। ओ भाई, ये इतला देने के लिए आपको चेयरमैन लगाया था? हमें तो आपने निचोड़ दिया है। आधी धोती भी अब आधी रहेगी, मुकम्मल नहीं रहेगी। बुनियान और आधी धोती, ये है अब आम आदमी। आपने 36 किस्म के हम पे टैक्स लगाए हुए हैं, हमें कदम कदम पर छितर मारते हैं आप। वो मैं कल भी बात कर रहा था कि वो एक यूट्यूबर है डक्की भाई, वो इस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। NCCI ने उसको क्या किया?
NCCI ने उसको 29 दिन अपने रिमांड पे रखा 8 बाई 16 फुट की हवालात में, जिसमें ना बिजली, ना पानी, ना बल्ब, ना पंखा। और कसूर क्या था कि वो एक ऐप जुए की प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल आप पकड़े, क्यों नहीं पकड़ना, लेकिन यार इतना कोई 29 दिन आपने रिमांड पे रखा, और उस पर अब बातें जो हो रही हैं मुबैना तौर पर तशद्दुद और फिर करप्शन और फिर पैसे और ऊपर क्या है, वही आपके PSL को स्पॉन्सर करती थी वो ऐप जुए की, वही आपके क्रिकेटर्स के इधर वो यूनिफॉर्म पे होती थी और प्रमोट किया, और फिर उसके बाद वो सुना है कि अभी तक मौजूद है। तो आप भाई क्या पता नहीं किधर तरक्की हो रही है। बहरहाल जी अल्लाह फजल करे। तो वे फॉरवर्ड, आखिरी बात आपका 2 जुमलों में लंबी बात हो गई। वे फॉरवर्ड भाईजान इस मुल्क में वे फॉरवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि जिस लड़ाई में वो पड़े हैं, ये लड़ाई वो नहीं जीत सकते। इस लड़ाई में आपने भी ब्लंडर्स की है, कौमी असम्बली से निकल के दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ के एक इलेक्शन आपको मिल गया था, आप नहीं मैं 10 दिन पहले चाहूँगा, माई वे और हाई वे, इससे निकलना पड़ेगा। आप इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात हैं इस वक्त भी, और आपकी दिन ब दिन स्पेस कम होती जाएगी मजीद। तो अब आपने वापस आना है सियासत में, और आपकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से जो बेनिफिशरी हैं वो मौजें कर रहे हैं। वो ट्रंप साहब को जाके शर्म शेख में सलूट ठोक रहे हैं। और लिहाजा बात यह है कि सियासत में वापस आएँ, अंदर की कुंडी खोलें, मफाहमत, एक कदम पीछे हटें, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप बिहेव करें। और दूसरी तरफ से कहना यह है कि 9 मई एक बड़ा स्याह दिन था, आप उसमें सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं, और थोड़ी सी रह गई हैं, थोड़ी सी हो गई हैं। तो अब आप ये करें कि इनको सियासी स्पेस दें और थोड़ा सा मिलजुल के आगे बढ़ें। आप मिलजुल के आगे नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी तो आप भी वही बता रहे हैं जो महमूद मौलवी साहब बता रहे हैं। नहीं मैं अच्छा, आप स्ट्रेटजी से तो मैंने कोई नहीं इख्तलाफ किया, ठीक है, लेकिन मैं अगर ये कहूं तो क्या इमरान खान साहब मेरी बात मान लेंगे? किसकी क्या बात हुकूमत और रियासत मेरी बात मान किसकी बात मानेंगे? खान साहब, इमरान खान साहब जब ये चाहेंगे, इमरान खान साहब तो सिर्फ इमरान खान ही की बात मानेंगे। हाँ, तो इमरान खान साहब चाहेंगे, इमरान खान साहब चाहेंगे, और इमरान खान साहब की अगर किसी पे कमर पे हाथ होगा तो वो बात करेगा या उसकी बात में वजन होगा, और दूसरी तरफ से रियासत अगर चाहेगी तो उस बात में वजन होगा। मैं और आप एक तजवीज़ दे सकते हैं, वो मौलवी साहब भी दे रहे हैं, मैं भी और उनके और मेरे में ये इतना ही फ़र्क है कि मैं इधर तजियाकार के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो एज ए सियासतदान बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है।